Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Respected guests, renowned professionals, and everyone who is attending this session today, Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. I, Kiran Rizwan from Jinnah University for Women, form the fourth profession. This session is organized by the team Caregiver Plus. We would like to commence the session with recitation of few verses of Holy Quran by Ariba Nas. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna atayna kal kawsar wasalli li rabbika wanhar. Inna shaniyaka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jazakallah Ariba. We are moving towards the opening ceremony. Let me give you the brief introduction of the founder of Caregiver Plus, who is Dr. Umme Habiba. She has done PharmD from Jinnah University for Women. She is an organizer of few sessions. One of her radiopharmaceuticals, organized by her at Jinnah University for Women, and some other sessions too. She also gave online sessions as a speaker on the topic Basics of PowerPoint and awareness about COVID-19 effect on mental health. Previously, she worked as a manager in another organization for 2 years. She also worked as a senior teacher in school where she received a certificate of exemplary teaching service. Now, I would like to give brief introduction of Caregiver Plus. Caregiver Plus is an organization for all medical students who are intermediate graduated, whose founder is Dr. Umme Habiba and co-founder is Dr. Dua Javi. Our aim is to provide great opportunity for our young people to make their ways easier and help them to shine more. Our mission is to provide internships, training opportunities, sessions, webinars, seminars to upgrade knowledge, important news, informative posts, free ebooks, PDFs, useful notes, lectures, free career counseling and guidance with job updates. Now, I'm very pleased to invite our guest speaker, Professor Yahya Noori, who is Professor of Microbiology, Department of Pathology at Dow Medical College. Let's welcome him. बहुत शुक्रिया जनाब। तो स्टार्ट करें अगर आपकी इजाजत हो तो। Yes sir, जरूर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। आज हम बात करेंगे जनाब स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। मैं थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखना चाहूंगा सेशन को। तो अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं तो आप उसको चैट बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो क्या है स्ट्रेस आपकी नजर में? Response to change. Stress is a burden. हाँ जी, और abnormal response, overthinking. Worried about something, ठीक. Overthinking about things, we have no control. तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि भाई आप 10-15 मिनट पढ़ने में लगाएं। नाश्ता करता है बंदा, तैयार होता है, 5-10 मिनट तस्बीह करें अल्लाह ताला की। सुबह सुबह अल्लाह ताला ने तस्बीह करने का हुक्म दिया है और अल्लाह ताला को पसंद है ये। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें 10-15 मिनट की और उसके बाद तैयार होके आप ऑफिस के लिए निकल। जब आप अपनी वर्क प्लेस के लिए निकल रहे हैं
और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो होना ये चाहिए कि आप 15 मिनट का क्वेश्चन का मार्जिन रखकर निकलें। यानी अगर 9 बजे पहुंचने का टाइम है तो आप ऐसे निकलें कि आप 8:45 पे अपने ऑफिस। उसका फायदा क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जैम होता है, आपके साथ कोई मसला हो जाता है, तो आपके पास वो क्वेश्चन मौजूद है जो कि आपको कवर करेगा और आप फिर भी टाइम पे पहुंच जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम लेट हो रहे होते हैं और जिसकी वजह से हम खामखा परेशान होते हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जो बिला वजह में कुछ लोगों को रोज ही हो रही होती है, वो निकलते ही देर से। तो भाई 15 मिनट से आधे घंटे का क्वेश्चन आप बना लें, और जब आप अपने ऑफिस में पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद बैठकर अगर मौका आपके पास है, जाहिर है हर चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, तो आपको उसमें से अपने लिए पिक एंड चूज कर। तो ऑफिस में बैठे हैं तो सबसे पहले आपने जो है वो ये देखना है कि आज सबसे अहम काम क्या है। सबसे पहले ईमेल नहीं चेक करनी, सबसे पहले मोबाइल मैसेजेस के लिए चेक नहीं करना। कोशिश करनी है कि शुरू का 1-1.5 घंटा जो है वो बड़ी प्रोडक्टिव अंदाज में गुजारा जाए, अहम तरीन कामों को निपटाया जाए। अच्छा, इस अहम तरीन कामों का पता आपको कैसे चलेगा, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। मैं नॉर्मली लोगों को ये मशवरा देता हूँ और मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ कि मेरा दिन स्टार्ट होता है मगरिब के वक्त, एक दिन पहले। सूरज गुरूब हो गया, मुझे पता चल गया जी मेरा अगला दिन शुरू हो चुका। अब मैंने अगले दिन की प्लानिंग करनी है। मैंने ये देखना है कि अगले दिन के कौन कौन से अहम काम है, उसमें से कौन सा काम मैं अभी रात में बैठ के अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत टाइम, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा देकर जो है वो अगले दिन का आगाज किया जाए। रात को बैठकर सोने से पहले जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उसका शुक्रिया अदा करें, उसका शुक्र करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूं। तो आप उसके साथ शुक्र करें, उससे अगर बातें कर सकते हैं तो 10 मिनट जानमाज बिछा के उससे बात करें। उसको बताएं कि जी मेरे सारे दिन के ये प्रॉब्लम्स थे और आप प्लीज कुछ करें, मैं खुद तो कुछ कर नहीं सकता, कमजोर हूँ, मुझे हिम्मत दें, ताकत दें, रास्ता सुझाएं। सो जस्ट लाइक अ फ्रेंड आप अल्लाह से बात करें और कोशिश करें कि जो सोने का टाइम है ना उस पे रात को 10 बजे के बाद मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम रखें, स्पेशली अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ये जंग किसी दिन आप हार जाएंगे, किसी दिन आप जीत जाएंगे, मगर लड़नी जरूरी है। कोशिश करें कि अर्ली सो जाएं, जितना मुमकिन हो 11 बजे सो जाएं, 10:30 बजे सो जाएं, 12 बजे मैक्सिमम सो जाएं और रात का वक्त जाया ना करें। अच्छा जी, आप फजर में उठ गए, प्लानिंग आपने मगरिब के बाद कर रखी थी या सोने से पहले कर ली थी, तो आपके पास एक छोटी सी कागज की चिट तैयार है कि जी आज के सबसे अहम काम ये हैं, उनका जायजा लें और उसमें से सबसे ज्यादा अहम काम जो लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में है, उसको निपटाएं। और उसके बाद जब आप 40-45 मिनट बाद थक जाएं तो अब आप अपनी ईमेल्स को, अपने मैसेजेस को चेक करना शुरू करेंगे, भाई क्या मसला है, किसी कोई ऐसी इतनी चीज है जो कि बर्निंग इशू आया हो। और उसके बाद फिर आप अपने दिन के काम में लग जाएं। दोपहर के बाद कोशिश करें कि जो 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 ऐसे काम हैं जो हाई स्टेक्स नहीं है उन कामों को रखें, जो रिडंडेंट टास्क हैं उनको रखें। उसका फायदा क्या होता है, असल में दोपहर के बाद जब आप खाना वाना खा लेते हैं तो कहा जाता है, एक साहब है डेनियल एच पिंक, बड़ी खूबसूरत किताब उन्होंने लिखी, उसका नाम है वैन। तो वो ये कहते हैं कि आधा घंटा, तो वो ये कहते हैं कि दिन का जो बदतरीन वक्त है काम करने का, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, दैट इज 9 सॉरी आफ्टर 2 o'clock, ठीक है ना, वर्स्ट टाइम है। और उस वक्त के बाद जो है वो लोग बड़े बड़े काम जो कर रहे होते हैं ना उसमें गलतियों के इम्कान बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि उस टाइम पे कोई हाई स्टेक काम, अगर से कोई मजबूरी नहीं है तो ना करें, अवॉइड करें। अच्छा जी, दोपहर हो गई। अगर आप जल्दी घर आ जाते हैं मेरी तरह, जैसे मेरी 2:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मैं तकरीबन 3:15 से 3:30 के बीच में घर पहुंचता हूं। मेरा पहला काम होता है कि मैं खाना खाऊं और दूसरा काम होता है कि मैं 1 घंटे की नींद। ठीक, तो आप फॉर एग्जाम्पल जो है वो अ, शाम में देर से घर आते हैं तो ज़ाहिर है आप ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर आप कुछ और कर सकते हैं ना। फिर आप ये कर सकते हैं कि लंच टाइम में सर यूं रख के टेबल पे और 10 मिनट का ब्रेक ले लें, 15 मिनट का ब्रेक ले लें। और उससे ये होगा कि आपको, जी जनाब, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि हर बंदे के लिए देखिए वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। आपको मैं 15 चीजें बताऊंगा तो उसमें से किसी के लिए 3 काबिल अमल होंगी, किसी के लिए 5 काबिल अमल होंगी, किसी के लिए 10 काबिल अमल होंगी, किसी के लिए 15 की 15 काबिल अमल होंगी, कोई बहुत ही खुश नसीब है। सो आपने पिक एंड चूज करना है कि कौन सी चीज बेहतर किस तरह की जा सकती है।
क्योंकि जाहिर है हर बच्चा अक्लमंद है ना, आप अपने तौर पे डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये वाला सिस्टम जो है ना मेरे को सूट करता है, ये मेरे लिए, तो आप उसको चूज कर लें। 15-20 चीजों में से अगर आपके 5-6 फायदे भी हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में इट्स वर्थ इट। तो जनाब हम पहुंचे थे दोपहर में। शाम में असर से मगरिब का टाइम बड़ा कीमती होता है। उस टाइम पे मैं अगर कोशिश करता हूँ, मुझे मौका मिल जाए तो मैं बैठता हूँ किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे चिड़ियों की आवाज आ रही हो, जहाँ थोड़ा सा कुदरती माहौल हो। अभी तो कुत्ता भौंक रहा है, ये नॉर्मली खामोश रहता है, तो और मेरा है भी नहीं है, सामने वालों के यार उन्होंने रखा हुआ है। तो कोशिश मैं करता हूँ कि किसी थोड़े से नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर वक्त गुजारा जाए। तो और थोड़ी सी तस्बीह पढ़ ली जाए, थोड़ा सा अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाया जाए, कुछ दुआएं शुआएं मांग ली जाए। तो असर से मगरिब का टाइम आपका रिलैक्सेशन का। उसके बाद मगरिब के बाद तो मैंने आपको बता दिया कि आपका नया दिन शुरू होता है। इसमें एक चीज बहुत अहम है जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे काम होंगे जो कि आपको करने में बहुत मजा आता है, जिसको करते हुए आप अपनी अ, वक्त और साथ ही जो दुनिया में मौजूद रहने का एहसास है, उस वक्त की कैद से बंदा निकल जाता है। उसको कहते हैं ज़मा और मकान की कैद से। इसको अंग्रेजी में एक साहब थे जिनका नाम था मिहाई सिक्स-एन-मिहाई, बहुत ही जबरदस्त। अभी कुछ अर्से पहले उनका इंतकाल हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्लो। सो फ्लो से मुराद ये है कि आप कुछ ऐसे काम होंगे जो करने में आपको बहुत मजा आता हो। अच्छा, मैं सिर्फ अच्छे कामों की बात कर रहा हूँ। ये ना हो कि आप कहेंगे कि टीवी देखते हुए मुझे बड़ा मजा आता है या मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए मैं वक्त की कैद से निकल जाता। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप कोशिश करें कि उनमें से 4-5 कामों की लिस्ट बनाएं। उन कामों को अपने दिन में प्लांट करें। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि यार ज़ोहर की नमाज के बाद 15 मिनट में ना पेंटिंग करूं, मैं 10 मिनट कोई किताब पढूं, तो इस तरह के 5-6 स्पॉट्स आपके पास दिन में होने चाहिए, जिनके अंदर आपने इनको प्लांट किया हुआ है डेलिबरेटली, और उसको समझें कि आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है ये समझ कर करें। तो आप देखिएगा कि इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इतना होगा कि इससे आप ग्रेजुअली जो स्ट्रेस का लेवल है आपका कम होता चला जाए। असल बुनियाद ये है कि आपने हैबिट्स फॉर्म करनी है, आपने अपनी आदतें डेवलप करनी है और उन आदतों पे अमल करना है। मैं महवर के नाम से जो लिखता हूँ, तो मैं अगर अगर मुझसे कोई कुछ कहता है ना कि भाई हमें बताएं कि इससे फायदा कैसे उठाया जाए, तो फायदा ऐसे उठाया जाता है, मैं खुद भी ये करता हूँ कि जो जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ मैं उसे कुछ एक्शन पॉइंट्स की फॉर्म में किसी जगह लिखता जाता हूँ। और मैं देखता हूँ कि मैं उसको लिखता नहीं हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करने की कोशिश करता हूँ। तो अमल जब तक नहीं आएगा ना, आप ऐसे 100 सेशन भी अटेंड कर लें और 10 लोगों की बात भी सुन लें तो कोई फ़ायदा नहीं। असल चीज़ है अमल, उसको प्रैक्टिस में लेकर आना। जब आप उसको प्रैक्टिस में लेकर आएँगे इन सारी बातों को या इनमें से कुछ बातों को जो भी आपके लिए पॉसिबल हैं, तो इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। एक छोटा-सा मैंने आपको नुस्ख़ा बताया है। एक चीज़ और एडिशनल मैं बताऊँ कि आपको ये ज़रूर करनी चाहिए। बाकी चीज़ें आपको इंशाल्लाह उस वर्कशीट से मिल जाएँगी कि आपको एक्सरसाइज़ मस्ट करनी चाहिए, फिज़िकल एक्सरसाइज़। होता क्या है, मैं एक कोर्स ले रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से, और बाबा ने हमें ये बताया कि जब कैंसर हो जाता है ना किसी को, आप लोग तो सारे ज़्यादातर फार्मासिस्ट हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा, तो उसकी जो ड्रग्स होती हैं, उससे डिप्रेशन होता है, ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट। और वो डिप्रेशन जो है वो रिफ्रैक्टरी टू मेडिसिन्स होता है। मगर वो डिप्रेशन एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड करता है। कितनी हैरत की बात है कि आप दवाओं से, एंटी डिप्रेसेंट से उसको दूर नहीं कर सकते, मगर एक्सरसाइज जो है वो उसको दूर कर देती है। इसी तरह एक प्रैक्टिस है जिसको हम कहते हैं बेयर फुट वॉकिंग, अर्थिंग। ये आप चाहें तो पबमेड पे सर्च करके भी देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो बेयर फुट वॉकिंग का फायदा ये होता है कि वो कहते हैं जी आपकी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉडी में, जमीन को कर जाते हैं, एंड इट डिक्रीजेस द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस ऑफ द बॉडी। उस पे रिसर्च भी है और आप उसको चेक कर सकते हैं जाके पबमेड पे। तो ये 2 काम आपने जरूर करने हैं। तीसरा काम आपने ये करना है कि नेचर के अंदर टाइम जरूर गुजारना है कुछ। नेचर से मुराद ये है कि आपको अगर कोई ग्रीन कता मिल जाए, घर में बना सकते हैं तो बना, जगह है तो इंडोर प्लांट्स रख लें, और नहीं है तो कम से कम एक गमला ही ला के रख लें, उसी को देखते रहा करें।
पेट्स का मशवरा मैं आमतौर से इसलिए नहीं देता कि पेट्स एक बड़ी जिम्मेदारी होते हैं। अक्सर लोग जज्बात में ले तो आते हैं लेकिन उनको मेंटेन नहीं कर पाते। आज वैसे ही इतनी महंगाई हो गई है, कैट फूड 4 गुना महंगा हो गया है पहले के मुकाबले। तो गली मोहल्ले की बिल्लियों से दोस्ती लगा सकते हैं तो लगा ले, लेकिन ये कि घर में रखना जो है ना वो थोड़ा फाइनेंशियली बंदे के ऊपर बर्डन हो जाता है। और कई होता है कि पहले आते हैं फिर रखने उसका अलग लग जाता है, तो इस तरह के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर। ठीक है जनाब, कोई सवाल है तो मुझे बता दें, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है कि जी मेरे पास 6:15 मिनट। तो अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो जरूर मुझसे कर लें। मैं थोड़ा सा अपने काम का तारुफ आपसे करा देता हूँ, यहाँ मौका लग गया है तो जितनी देर वाला है। मैं डाउ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, डाउ मेडिकल कॉलेज में। प्रोफेशनल जो है ना उस पर लिखना मेरा शौक है, और मैं नॉर्मली रूटीन में इस टॉपिक पर लिखता हूँ महवर के नाम से। सो अगर आप मेरा फेसबुक पेज तलाश करें तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। एक अदद कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनके अंदर हम यही तहरीरें शेयर करते हैं, तो आपको वो भी मिल सकती हैं अगर आप देखना चाहें तो, पढ़ना चाहें तो। रूटीन में बहुत छोटी छोटी तहरीरें होती हैं जिनको मैं नॉर्मली 1 पेजर लिखता हूँ। आजकल तो नई तहरीरें ज़रा कम ही लिख रहा हूँ क्योंकि पुरानी इतनी है शेयर करने के लिए, तो नई नहीं लिखनी पड़ती। तो ये है जनाब मेरा छोटा सा तारुफ, और इसी वजह से मैं आपसे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात भी कर रहा था। सवालात कोई नहीं है, अच्छी बात है। ये है जनाब यूट्यूब चैनल का लिंक। ब्रेन फॉग इज मेजर रीजन फॉर स्ट्रेस। देखें, जब भी डॉक्टर फारिया, जब भी आपके जहन में क्लैरिटी नहीं होगी ना तो आप परेशान ही रहेंगे, बिकॉज आपको पता नहीं है कि आप जा कहाँ रहे। सो इंसान के जहन में उसके मकासद वाजे होने चाहिए। छोटा सा सेशन था, मैं आपको क्या क्या बताता है इसके अंदर, लेकिन ये कि अगर आपके जहन में क्लैरिटी है और आपका मकसद बड़ा है तो आप जो एफर्ट कर रहे होंगे वो भी आपको मजा देगी। तो रास्ते के पाँव के छाले होते हैं ना इंसान को, वो भी अच्छे लगते हैं अगर रास्ता किसी बड़ी मंजिल की तरफ जा रहा हो। लेकिन अगर बंदे के सामने क्लैरिटी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं किस रास्ते पर हूँ, तो वो कंफ्यूज ही रहता है ना, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। तो इसको आप ब्रेन फॉग कह लें या इसको आप लैक ऑफ क्लैरिटी कह लें। सुलेमान अहमद साहब हैं, उनको आप सर्च कीजिएगा ऑन यूट्यूब। उनकी विजनिंग के ऊपर कुछ वर्कशॉप्स की वीडियोस पड़ी हैं, ही टॉक्स अबाउट विजन। सो हमारी अपनी जो मैंने चैनल शेयर किया है इसके ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काफी सारी वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। फातिमा, बेटा ऐसा है कि जब भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक जो है ना वो स्किल्स से होता है। जैसे कम्युनिकेशन एक स्किल है, और स्किल का सबसे बड़ा मसला होता है कि स्किल किसी को देखकर किसी को सुनकर नहीं आता, स्किल आता है प्रैक्टिस करने से। सो आपको अगर आपको किसी से बात करने में घबराहट होती है तो आपको चाहिए कि आप पहले एक बंदे से बात करना शुरू करें, कोशिश करें कि आप अपनी बात समझा सकें। जॉर्डन पीटरसन कहता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है राइटिंग से। तो जो आपके जहन में आता है रोजाना लिखने की आदत डालें, 10 मिनट 15 मिनट। जिस तरह मैंने रात को आपको कहा रोजाना अल्लाह ताला को खत लिखें कि जी मुझे आज आपकी ये फायदा हुआ, आज ये नुकसान हुआ, आज मैं यूं परेशान थी। सो आपकी थॉट की क्लैरिटी आपके सामने वाजे होगी जब आप पढ़ेंगे उसको। उसके बाद आप कोशिश करेंगे एक बंदे से बात करना शुरू करें, 2 बंदे से बात करना शुरू करें, 3 बंदों से बात करना शुरू करें। उसके बाद तादाद बढ़ाती चली जाए। तो इसका आपको फायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी और आप फिर घबराना बंद हो जाएंगे। होते ना, जब आप जो है वो किसी चीज को मुसलसल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी आदत हो जाती है। मूड स्विंग्स, ओवर थिंकिंग, ये तकरीबन दोनों एक जैसी चीजें। इसका ताल्लुक भी मकसद से है। देखिए जब आपका मकसद बड़ा होता है ना तो आपको छोटी 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 चीजें जो है वो परेशान नहीं करती। स्ट्रेस ओवर करियर चेंज ऑफ समथिंग आई एम अफ्रेड टू बट एट द सेम टाइम आई वांट टू। देखिए कदम उठाना पड़ेगा। हम्म
देखें, जहां तक ताल्लुक है फैमिली स्ट्रेस का, ओवर थिंकिंग, अच्छा जी टाइम बिल्कुल ही खत्म हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि इन सारे मौजूआत पर नॉर्मली मैंने यूट्यूब पे अपनी दोनों वर्कशॉप्स के अंदर या अपनी वीडियोस में बात कर रखी है। आप उनको जरूर देखें और उससे इंशाल्लाह आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। 600 से ऊपर वीडियोस हैं, छोटी 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 3, 4, 5 मिनट की। और हम कोशिश करेंगे कि जर्नलिंग से बहुत ज्यादा फायदा हो। और जो है देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लिए जिंदगी में एक ऐसा मकसद चुने जो कि आपकी जात से बड़ा हो, जिसमें दूसरे शामिल हो। तो आपका स्ट्रेस खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब अल्लाह ताला इंसान को देखता है कि वो उसके बंदों के काम में है, तो वो उसके कामों में लग जाता है। कंसंट्रेशन का कि लीक होने का जो रास्ता है ना, वो आपका मोबाइल फोन है। अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। आपके सवालात मैं चाहूंगा कि मुझे मैडम उम्मे हमीबा जो है वो भेज दें, तो मैं आपको उसकी वॉइस मैसेजेस कर दूंगा जवाब। ठीक है, वो आप तक इंशाल्लाह पहुंच सके। सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम जो है वो मीटिंग रीजॉइन भी कर सकते हैं, तो जिनके कोई क्वेश्चंस हो तो फिर आप उसमें रिप्लाई कर दें। ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है। मीटिंग तो खत्म हो जाएगी, लेकिन हम पुरानी लिंक यूज करेंगे। जी जी सर, वही प्रीवियस लिंक से हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, कोई थैंक यू मसला सर। नहीं। आप जो है वो रीजॉइन कर लें। ओके।